آئے ہم تالیاں بجائیں گے اور خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع کے خون میں، یسوع کے خون میں خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 28واں باب، اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹنے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس کا یہ واقعہ انتہائی مشہور ہے، ہم نے اس کو بارہا پڑھا ہے، ہم نے اس کو بارہا سنا ہے، بارہا اس پر غور کیا ہے۔ مریم مگدلینی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کچھ اور ساتھی خواتین ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہیں، اور وہاں پر ایک عجیب ماجرا انہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو پتھر کے اوپر بیٹھا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم یسوع کو دیکھنے کے لیے آئی ہو جو مر گیا تھا، لیکن میں تمہیں ایک نیوز دینا چاہتا ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آمین۔ کیوں جی اٹھا ہے جی؟ اپنے کہنے کے مطابق، کیونکہ کرائسٹ نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے مصلوب کیا جائے گا، مجھے دفنایا جائے گا، اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، اور فرشتے نے نہ صرف ان کو یہ بتایا کہ یسوع جی اٹھا ہے، بلکہ وہ جگہ بھی اسے دکھائی جہاں پر اسے رکھا گیا تھا، اور وہاں پر یسوع کی ڈیڈ باڈی نہیں تھی، اور اس نے کہا تم جا کر اپنے ساتھیوں کو، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو یہ بات بتاؤ کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا اور وہ تم سے ملاقات کرے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیحی زندگی کی بنیاد ہم سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تجسم پر ہے، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ہے، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ہے۔ اگر وہ تجسم نہ لیتا، زمین پر نہ آتا، تو وہ مصلوب کیسے ہوتا؟ اگر وہ مصلوب نہ ہوتا، اس کی جان نہ جاتی، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ نہ بنتا، تو میرے اور آپ کے گناہ اس کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کے گناہ کیسے دھلتے؟ اور اگر وہ جی نہ اٹھتا تو میری اور آپ کی نجات پر مہر کیسے ہوتی؟ آمین۔ تو کرائسٹ کا جی اٹھنا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کرۂ ارض کا ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہے۔ اگر آپ اسے سب سے بڑا ایونٹ بھی کہہ لیں تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے، کیونکہ یہ خدا کے ماسٹر پلان کا سب سے سپر سٹروک ہے۔ وہ پلان جو خدا نے بنائے عالم سے پہلے سوچا تھا، اس کو ترتیب دیا تھا، یہ اس کا ماسٹر سٹروک ہے۔ آمین۔ لیکن آپ اس بات پر ضرور حیرت کریں گے کہ سب سے زیادہ مخالفت اسی ماسٹر سٹروک کی ہے۔ بہت سے مسیحی اس بات کے لیے تذبذب کا شکار ہیں۔ مجھے بہت سی کالز آئیں ان دنوں میں، انہوں نے کہا سر ہم لوگ کیوں یسوع کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں؟ تو یسوع کے جی اٹھنے کی عید کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں بائبل میں، تو کیوں مسیحی پاگلوں کی طرح عید منا رہے ہیں؟ میں کہا یار تیری امی دی برسی دا کتے ذکر ہے، میموریل سروس دا کتے ذکر ہے کہ تسی کرنی ہے، ضرور ہی کرنی ہے؟ کہتا جی نہیں ذکر۔ میں کہا تسی کیوں کر دے؟ جب تم مردوں کے لیے اتنے بڑے بڑے ایونٹس کر سکتے ہو تو زندہ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ آمین۔ بائبل مقدس بھری پڑی ہے، رسولوں کی تعلیم ہی اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پولس رسول کے تمام خطوط اٹھا کر دیکھ لیں، شاید ہی کسی خط کے اندر اس نے کرائسٹ کے جی اٹھنے کا ذکر نہ کیا، شاید ہی کسی جگہ پر اس نے مسیح کی مصلوبیت کا ذکر نہ کیا۔ نیا عہد نامہ بھرپور طریقے سے اس ایونٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ایک بھائی کہنے لگا کہ جی تمہاری عیدیں مجھ پر بار ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ ایسا واقعی لکھا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب، اس کے اندر لکھا ہے کہ تمہاری عیدیں مجھ پر بار ہیں،
तुम जो हदिये लेकर आते हो, तुम जो दैयकियां लेकर आते हो, वो मुझ पर बार हैं। और ईदें क्यों बार है? गुनाह के साथ। खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी ईदें मुझ पर बार हैं, खुदा कह रहा है तुम्हारी ईदें इसलिए मुझ पर बार है क्योंकि तुम गुनाह के साथ उन ईदों को मनाते हो। और आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई जा रही है, लेकिन बहुत सी जगह पर यह महज एक दिखावा है। बहुत सी जगह पर बड़े बड़े तंबू लगे हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स किए जा रहे हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है। आपको पता है जब दाऊद अहद का संदूक वापस लेकर आ रहा था, उसकी सोच अच्छी थी, उसका ख्याल अच्छा था। उसे पता था कि जब तक अहद का संदूक इस्राएल के अंदर वापस नहीं आएगा, खुदा की हुजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत इस्राएल के अंदर वापस लौट कर नहीं आएगी। खुदा के कवानीन उसके अंदर है, वो खुदा का अहद है, खुदा के अहद का संदूक है। और जब तक वो इस्राएल में वापस नहीं आएगा, हम दुश्मन के ऊपर गलबा नहीं पा सकेंगे। जब तक खुदा हमारे साथ नहीं होगा, हम किस तरह दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे और उस पर गालिब आएंगे। उसने सोचा, उसने प्लानिंग की कि मैं वापस लेकर आऊं, लेकिन खुदा ने एक कानून मुकर्रर किया था कि अहद के संदूक को सिर्फ और सिर्फ लावी उठाएंगे। कौन उठाएंगे जी? लावी उठाएंगे। ये 12 कबीलों में से एक कबीला था जिसको ये खिदमत का काम सौंपा गया था कि वो खुदा के घर की खिदमत के काम को संभालें। लेकिन दाऊद ने क्या किया? लेने के लिए तो वो अहद का संदूक गया था, लावियों ने भी वापस ही लेके आना था, लावी उनके साथ थे, लेकिन लावियों को उठाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि एक बैलगाड़ी तैयार की गई। बैल के ऊपर मेहंदी लगाई गई होगी, उसके सींगों को अच्छे रिबन बांधे गए होंगे, झांझे पकड़ ली, तबले पकड़ लिए, बाजे पकड़ लिए, बरबत पकड़ लिए, क्वायर को रेडी कर लिया, सब कुछ कर लिया। वो सारी चीजें ठीक थी, बशर्त यह कि अहद के संदूक को लावियों ने उठाया होता। लेकिन वो लावियों के कंधों पर नहीं था, वो बैलगाड़ी पर था। और शोर बहुत था, हंगामा बहुत था, नारे बहुत थे और वहां पर हजूम बहुत था। लेकिन जो कुछ भी किया जा रहा था वो खुदा की तरतीब से उलट था। समझ आ रही है आपको बात? आपको अपने इर्द गिर्द बहुत कुछ नजर आएगा, कपड़े, तैयारियां, शॉपिंग, सजावट, ये वो लटरम पटरम, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन जो मैसेज है ईद क़यामतुल मसीह का, उससे मसीही बहुत दूर चले गए। शैतान मसीहियों को ईद क़यामतुल मसीह के मैसेज से बहाकर बहुत दूर ले गया। और ना सिर्फ इसे बल्कि क्रिसमस को भी इसी तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, उसके अंदर खाने पकाने और ये सारी चीजें शामिल होती हैं, और इसी को हमने क्रिसमस का नाम दिया। जब क्राइस्ट का तजस्सुम हुआ, खुदा के कलाम ने बदन को इख्तियार किया। क्या ये एक छोटी बात थी? ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और शैतान कहता है ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें तुम जितना भी पैसा बहा सकते हो बहा दो। और सब जगह पर ऐसे, आप यूरोप को देख ले, हम तो अपने चर्च को सजाते हैं, वो पूरे मुल्क ही सजा देते हैं। जगह जगह पर उन्होंने क्रिसमस ट्री लगाए हुए हैं, जगह जगह पर लाइटें लगी हुई हैं, जगह जगह पर। लेकिन 98% लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस के बुनियादी मैसेज को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर नफरत तो वही है, निजात का एक्सपीरियंस ही उनके पास नहीं, इस चीज की गारंटी उनके पास नहीं है कि मैं निजात पा चुका हूं। आज जब हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो वो मसीही जो हला गुला कर रहे हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा सुबह सुबह ट्रक पे निकले, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, जैसे दाऊद की सोच अच्छी थी। दाऊद की सोच बुरी थी कि अहद का संदूक वापस आ जाए। इन बहन भाइयों की सोच पर मुझे किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग उठे, सनराइज सर्विस की, सुबह सुबह गए वहां पे हलवा, कई लोग इसीलिए जाते हैं कि वहां पे हलवा पूड़ी होनी बाद में। कई लोग यीशु के पीछे भी इसीलिए लगे हुए थे कि मछली और रोटी खाने को देता है। यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं लगे कि तुमने मौजे देखे, बल्कि तुमने रोटी खाई थी अच्छी, टुक्कर तानू रोटी टुक्कर चंगा लबा से, इसलिए तुम मेरे पीछे लगे हुए। आज ईद क़यामतुल मसीह मनाई जा रही है पूरी दुनिया में, लेकिन क्या निजात का पैगाम मेरी और आपकी जिंदगी में आ चुका है? क्या हम खुदा के कलाम की गहराइयों के अंदर उतरने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे परिंदे हैं जिनके पर तो हैं लेकिन वो उड़ना नहीं चाहते? क्या हम ऐसे ईमानदार हैं जो खुदा के कलाम की तालीमात को जानते तो जरूर हैं लेकिन उन पर अमल करने से कासिर हैं? खुदा का कलाम हमारे पास है लेकिन उसकी तासीर हमारे पास नहीं। मनाती बहुत जोरदार है लेकिन उसका असर कहीं नहीं। क्या आप कह सकते हैं कि ये ईद क़यामतुल मसीह है? ये तो महज शोर है, जैसे दाऊद ने शोर मचाया था, बहुत शोर था, और फिर अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके सारे शोर को मातम में बदल दिया। और वो शोर जिसमें सब लोग बड़े खुश थे, हैप्पी थे, वो कह रहे थे कि अहद का संदूक आ जाएगा, आज ईद क़यामतुल मसीह है। जब मैं सुबह उठा, हमारी सारी रात से लाइट गई थी, कल सुबह 7 बजे हमारी लाइट गई और रात को 2 बजे आई, और जैसे ही मैं सुबह आज उठा फिर धमाका हुआ और फिर लाइट चली गई। तो जब मैंने थोड़ी देर के लिए मोबाइल को ऑन किया, आप बिलीव करें हजारों की तादाद में मैसेज आना शुरू हुआ, ट्रिंग 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 ट्रिंग।
हैप्पी रेजरेक्शन डे, हैप्पी रेजरेक्शन डे। किसी ने कोई पेज भेज दिया, किसी ने कोई वीडियो भेज दी, किसी ने सुबह की सनराइज की सर्विस भेज दी, मोबाइल मेरा लोड हो गया। दाऊद ने सोचा कि ये बहुत अच्छा एहतमाम मैंने किया है, इससे अच्छा एहतमाम आज तक इसराइल के अंदर किसी बादशाह ने नहीं किया। इतनी इज्जत ऐद के संदूक को आज तक किसी ने नहीं दी जितनी मैंने दी है। वो फख्र कर रहा था अपने दिल में, सोचता होगा वाह, जब ऑडियंस को देखता होगा कहता यार की अरेंजमेंट किया। लेकिन उसका अरेंजमेंट गलत था। उसका अरेंजमेंट इंसानी सोच पर मबनी था, इंसानी दिल के इरादों और ख्यालों पर मबनी था। और फिर हुआ क्या, बैल को ठोकर लगी, बैल गिरने लगा, आउट ऑफ बैलेंस हुआ और अहद का संदूक एक तरफ को झुक गया। वहां पर एक शख्स था उज़ा नाम, उसने फौरन आगे बढ़ के, उसके दिल में ये गैरत थी कि ये खुदा के अहद का संदूक है, ये जमीन पर गिरे, हम इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। उसने आगे बढ़ के अहद के संदूक को हाथ लगाया तो खुदा का कहर उस पर भड़का और वो शख्स उसी मौके पर मर गया, उसकी डेथ हो गई। और वहां पर एक मातम सा हो गया, खौफ और हिरास फैल गया। और बाद में एहसास हुआ दाऊद को और उसके साथियों को, और काहिनों ने दाऊद को बताया कि मिस्टेक ये हुई है कि हमने बैल पर रख दिया है, हमें चाहिए था कि हम लावियों को ये मौका देते कि वो अहद का संदूक उठाते। आपको पता, जब यरदन में से यशवा उन्हें लेकर निकला था तो लावी लेकर निकले थे। खुदा का जलाल जब मूव करता था और खुदा उन्हें कहता था बनी इसराइल को कि अब तुमने आगे निकलना है, और पूरी कौम चल निकलती थी काफिले की सूरत में, खुदा उनके आगे आगे चलता था तो अहद के संदूक को लावी उठाते थे। खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं कि ये 2019 है या 2050 है। खुदा के कवानीन अटल हैं, अपनी जगह पर मौजूद है। अगर कोई शख्स उनको ब्रेक करेगा, उन लॉस को ब्रेक करेगा, तो खुदा उसको पसंद नहीं करेगा। आमीन। आज ईद क़यामत अल मसीह है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था उसने उसको पूरा किया, क्योंकि मैं एक इससे भी अगले इवेंट की तैयारी के लिए तैयार हो रहा हूं। और वो इवेंट क्या है? क्राइस्ट इज कमिंग। यीशु दोबारा आ रहा है, वो दोबारा आ रहा है मुझे और आपको लेने। अगर यीशु के जी उठने की नबूवत, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का कलाम पूरा हुआ है, जो कुछ क्राइस्ट ने कहा था, तो उसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु जी उठा है? आमीन। यीशु जी उठा है जी। तो फिर क्या आपका ईमान इस बात पर भी है कि यीशु आपको लेने के लिए जल्द आ रहा है? आमीन। अगर यीशु आ रहा है तो मेरी और आपकी तैयारी कहां है? क्या हम तैयार हैं? ऐसा नहीं है। जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा तो क्या ईमान पाएगा? लोगों में ईमान देखेगा, खुदा के कलाम की प्रैक्टिस देखेगा। जिस चीज से मैं इन दिनों में बहुत ज्यादा खौफजदा हूं वो है इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप एक ऐसी सोर्स है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन इस हद तक लोगों में फैलाई जा रही है। एक बंदा 20-20, 30-30 खादमों को सुन रहा है, पड़िंग 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 ऐसे मैसेज जाते हैं, ऐसा कलाम जाता है, ऐसे कलाम जाता है, सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं। इतना कलाम सुनते चले जा रहे हैं कि कलाम की इंफॉर्मेशन उनके अंदर भरती जा रही है। यरूशलेम कब बर्बाद हुआ था? किसने आग लगाई थी? कितने सिपाही थे? ऐसे ऐसे सवाल लोग पूछते हैं, फलां 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 बहुत सी बातें। बाइबल मुकद्दस की गहराई के अंदर उतरने की कोशिश की जा रही है इंफॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन क्या खाली इंफॉर्मेशन आपको बचा लेगी? एक शख्स को पता है सिगरेट पीना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। इंफॉर्मेशन उसके पास है, कलाम उसने सुना है, कलाम पढ़ा भी है कि खुदा नशेबाजी से मना करता है। लेकिन अगर वो नशाबाजी कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको बताएगी। उसके दिमाग में ये चीज स्टोर है कि नशा करना गुनाह है, लेकिन वो नशा कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? नफरत बुरी चीज है, लड़ना बुरी चीज है, माँ बाप को सताना बुरी चीज है, बीवी को मारना बुरी चीज है, गालियां निकालना बुरी चीज है, रिश्वत लेना बुरी चीज है, दूसरों के लिए अपने दिल में हसद रखना बुरी चीज है, किसी को बद नजरी से देखना बुरी चीज है, नशा बेचना बुरी चीज है, झगड़ा करना बुरी चीज है, अपने दिल में गुस्से को बिठाए रखना बुरी चीज है। ये सारी चीजों की तालीम हमारे पास है, लेकिन प्रैक्टिस कोई भी नहीं। ना कोई गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार है, ना कोई अपनी हट से पीछे होने के लिए तैयार है। लेकिन यीशु जी उठा। आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि यीशु जिंदा है, यीशु जी उठा है, अब उसकी कब्र खाली है, हालेलुया। लेकिन आप कहां खड़े? कलीसिया कहां है? यीशु तो जी उठा है और कलीसिया गुनाहों में ही मुर्दा है। जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, पौलुस तालीम देता है इफिसियों के खत के अंदर 6 बाब में, जिन्होंने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। और जब उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो जिस तरह क्राइस्ट जी उठा, इस तरह कलीसिया को भी यह तजर्बा बख्शा गया है कि वो जी उठे और दोबारा से मुर्दा कामों के अंदर वापस ना जाए। लेकिन आज कलीसिया मुर्दा कामों की तरफ तेजी से बढ़ रही है और मुर्दा कामों के अंदर दबी हुई है, मुर्दा कामों के अंदर फंसी हुई है। आर्टिफिशियलनेस ने घेर लिया है कलीसिया।
लेकिन यीशु जी उठा, ये सबको पता है। यीशु जी उठा है, इससे फायदा उस शख्स को होगा जो खुद मुर्दों में से जी उठा है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। वो शख्स जो खुद गुनाहों की दलदल के अंदर फंसा हुआ है, उसने क्राइस्ट की सलीब को भी रद्द किया है, उसका यीशु के जी उठने से भी कोई ताल्लुक नहीं। आप अपने घर में बिरयानी पका सकते हैं, इससे आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई फरिश्ता आके आपको डंडे नहीं मारेगा कि तू बिरयानी क्यों पकाई, तो खाती क्यों है। आप खा सकते हैं, आपको आजादी है, नो प्रॉब्लम। गुनाहगार लोग भी हर किस्म की चीज खा पी लेते हैं, आप भी खा लें, लेकिन इससे क्या फायदा है जी। लोगों ने बहुत प्लानिंग की, कई लोगों की प्लानिंग क्या है, चर्च से निकलेंगे फिर पार्क जावांगे फिर इंज करांगे, ये ख्याल ही नहीं कि यार मैं तो बड़े लोगों ने लड़े हो या किसी ने सुलह कर लो, ये कोई ख्याल नहीं, क्योंकि इस तरफ तो ध्यान है ही नहीं। शैतान कहता पार्क ज्यादा जरूरी है, उथे जी झील है वो बड़ी जबरदस्त है, उथे तू जाएगा तो कश्ती भी सस्ती है, पूरी फैमिली लैके बह जाएंगे उहदे च, जिन्हें तेज पैडल चलाएंगे उन्नी तेज कश्ती भजेगी। बर्गर खाई, बोतल पीवी, छतरी थले बह गए, फल फ्रूट खाई, मजे करी, यीशु जी उठा। सोचें आज की कलीसिया की प्लानिंग क्या है, देखें आप भी इसी का हिस्सा है, मैं ये तानू बाहर नहीं काट रहा, आप भी इसी का हिस्सा है। यही प्लानिंग है, घर जाके क्या खाना है, क्या पकाना है, किसके घर केक लेके जाना है, किसको मिलना है, कौन हमारे घर दावत के लिए आ रहा है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, ईमानदारों की लाइफ को चेक करें जरा, वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इन सब इवेंट्स को, दुआ के साथ, रोजे के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। और सबसे बड़ी चीज ये कि उनकी लाइफ के अंदर क्राइस्ट की मौजूदगी का एहसास था। जहां कहीं वो जाते थे क्राइस्ट उनके साथ ही जाता था। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आने की उम्मीद करता हूं, मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम्हें कोई नेमत दूं, ताकि तुम्हें कोई नेमत दूं। मैं बड़ी इस चीज से हैरत हुआ, उन्हें नहीं कहा मैं तुम आके सब फिर 50-50 रुपए दूंगा, तुसी तैयार हो, मैं नवी गड्डी कढ़ा ली है 50-50 दी, जिस तरह ही मैं आना मैं सारे देना है। उसने कहा मैं तुम्हें कोई नेमत दूं, ओ नबूवत की नेमत, मौजज़ात की नेमत, गैर जुबानों का तर्जुमा, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, जब मैं हाथ रखूंगा तो तुम्हें नेमतें मिलेंगी, कलीसिया की अफजूनी होगी, कलीसिया की तरक्की होगी। ये है ये दे क़यामतुल मसीह, किसी शख्स के अंदर क्राइस्ट की लाइफ नजर आए। आज चर्च डेड है, बहुत से लोग जाते हैं, जब वो घर जाएंगे उन्हें भूल जाएगा कि वो आज क्या सुन के आए थे, उन्होंने आज क्या सुना था, आज का मैसेज क्या था, बहुत जल्द भूल जाएंगे। उसकी बीवी पूछेगी आज की कलाम सी, कहना बहुत अच्छा सी, लेकिन पता नहीं की सी। यीशु जी उठा है, ये याद रखें, यीशु जी उठा है लेकिन कलीसिया डेड है। सर काम कर रहा है, बाकी सब कुछ मफलूज। यीशु जिंदा है, कलीसिया मुर्दा है। ये हालत कुछ नहीं कर सक रही कलीसिया। कलीसिया के पास टारगेट नहीं है कि हमने सोल विनिंग करनी है, कलीसिया के पास टारगेट नहीं है कि हमने यीशु की गवाही देनी है। यीशु जी उठा है, आपको ये एक ऐसा इवेंट नजर आएगा कि थरथली मचा दी इस खबर में। रसूल भागते हैं, पतरस भागता है कब्र की तरफ, और वो देखता है कि जो कुछ मैंने सुना है मैं उसकी तस्दीक करूं जाकर। वो भागा और कब्र पे गया और उसने वहां पर देखा कि वहां पर यीशु की लाश नहीं है। यूहन्ना भी उसके पीछे भाग कर आता है, और फिर जगह जगह पर वो एक दूसरे को बताते फिरते हैं कि जिस यीशु को मसलूब किया गया था वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। और वो तहरीक जो सर्द पड़ती हुई नजर आ रही थी क्राइस्ट के जी उठने से, उस तहरीक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग इस मैसेज को समझ गए थे, बहुत थोड़े लोग थे, बहुत थोड़ी तादाद थी उन लोगों की जिन्होंने इस मैसेज को रिसीव किया और इस गवाही को लेकर पूरी दुनिया में निकले। अकेले पौलुस ने ही, मैं कहता हूं, शैतान के फाटकों को उड़ा कर रख दिया। आमीन। क्योंकि उसके पास एक जलता हुआ पैगाम था, उसके पास एक जिंदा पैगाम था, उसके पास जी उठे यीशु की तासीर, हकीकत और जिंदगी मौजूद थी। उसने कहा मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आज हम महज ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रेंग कहता भी भेज दिता, केड़ा रह गया होर दसो, ट्रेंग उन्होंने भी मैसेज, उन्होंने भी मैसेज कहता लो जी मैं तो फारग हो गया, आओ हुण चलिए। मैसेज तो सबको कर दिया, आओ हुण फिल्मा देखिए, आओ हुण ड्रामे लाइए, आओ हुण गाने लाइए, आओ हुण डांस करिए, आओ डीजे ले आओ हुण महफिल करिए। एक दफा मुझे अच्छी तरह से याद है, खुसरे आ गए खाजा सरा, तो उन्हें अंदर बुला लिया बंदे, कहता आओ यार गाने गुने गाओ जरा, साडा यीशु जी उठिया, रौनक लाओ। रौनक लग रही, यीशु जी उठिया, और रौनक कौन लगा रहे? खाजा सरा। कलीसिया का म्यार चेक करें आप, लोगों की मेंटालिटी चेक करें, सोच चेक करें, कलाम से कितने दूर हैं हम। और हमें आज इस चीज का फख्र है कि हम मसीही हैं। किस बात के मसीही हैं हम? हमारे पास तो मसीहियत की बुनियादी तालीम की समझ और फहम और हिकमत नहीं है। हमें इस चीज का इदराक ही नहीं है कि मसीहियत है क्या।
ہم تو صرف مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے اور ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ بھی چرچ جایا کرو اور چرچ ہم آ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہم مسیحی ہیں، کوئی ہم سے کچھ پوچھ لے ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمیں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کی سوال ہے. میرے سے پوچھو کہ مزیدار کھانا کس ریسٹورنٹ میں ملتا ہے، پھر وہ تم 6-10 دے گا. تسی اوتھے چیک کرو، اوتھے جاؤ، کیونکہ اس کو پتا ہے. اپنی نجات کے بارے میں اسے نہیں پتا، لیکن یسوع جی اٹھا ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. یسوع نے جو کہا تھا اس نے وہ کر دیا ہے. لیکن اب جو ذمہ داری کلیسیا کو دی گئی ہے، کیا کلیسیا اس کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھائے گی، اپنے آپ کو جھٹکے گی، اپنے آپ کو ان گناہوں سے آزاد کرے گی اور خدا سے فضل مانگے گی کہ خداوند اس پیغام کو دنیا کے اندر لے جانے کے لیے ہمیں استعمال کر. اور ہم اس قوت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم گناہگار لوگوں کو یہ جتا دیں کہ مسیح کے بغیر ان کو کسی طریقے سے رہائی نہیں مل سکتی، مسیح کے بغیر ان کو کسی طرح سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، مسیح کے بغیر انہیں کسی طرح سے خلاصی نہیں مل سکتی. اور یہی پیغام جب رسول لے کر نکلے، ایماندار لے کر نکلے، جہاں جہاں گئے انہوں نے اتنی دلیری سے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے گناہ دھل چکے ہیں کہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دی. آپ کو پتا ہے یہ سب سے بڑی کنجی ہے منادی کی، سب سے بڑی کنجی ہے گواہی دینے کی. جب آپ کسی شخص سے کہیں گے نا خدا کا شکر ہو میرے پہ گناہوں کا کوئی بھار نہیں، میں آزاد ہو چکا ہوں، کہے گا یار میری گل سن، تو کہہ کی نہیں تیرا مقصد کی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو یہ ٹرینڈ ہے میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں. یہ خاکساری کی علامت ہے ایشیا کے اندر، میں بہت گناہگار، بڑے بڑے گناہ کر کے بڑے مسکرا کے کہتا جی میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن خدا میری بڑی سنتا ہے. لکھا وہ تو اپنا سورج نیک اور بدوں دونوں پہ چمکاتا ہے. اس چیز پہ آپ فخر کر رہے ہیں کہ آپ بڑے گناہگار ہیں اور خدا میری بڑی سن رہا ہے، تو خدا جو بھی میں مانگنا دے دیتا. خدا تو ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں. آپ تو پھر بھی کبھی یسوع کو کہہ دیتے ہیں یسوع معافی، یسوع شافی دے، یسوع کافی. آپ تو کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کہتے، ان کا تو اس میں بھی بلیو نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے سرے سے. خدا تو ان کو بھی دے رہا ہے کیونکہ خدا یہ جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے اور میں ان کو مواقع فراہم کروں کہ یہ توبہ کر لیں. خدا تو انتظار کر رہا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم اپنی ڈھٹائی پہ اڑے رہیں اور خدا ہمیں بلیسنگ دیتا جائے. ایسا نہیں ہے. وہ لوگ بڑی گمراہی کے اندر ہیں جو اس سوچ کے اندر. یسوع مسیح جی اٹھا ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اس نے جو کفارہ دیا تھا وہ کامل کفارہ ہے. ہاللیلویا. اس نے اپنے لوگوں کے لیے جب جان دی، اپنا خون بہایا، اس نے ان کی نجات پر مہر کر دی. اور یسوع مسیح نے کہا حکم اعظم دیا رسولوں، جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ کرائسٹ کے آخری الفاظ ہیں، یہ حکم اعظم ہے جس کو ابتدائی کلیسیا لے کر نکلی تھی. لیکن آج کی کلیسیا، پادری بھی مس گائیڈ ہو گئے تو کلیسیا بھی مس گائیڈ ہو گئے. پادری گڈیاں دے پیچھے بھاج گئے، گڈیاں، کاراں، کوٹھیاں، بیریا ٹاؤن، ڈیفینس، فیز 8، فیز 9، 10، کوٹھیاں، عسکری فلیٹس، ان کو لگژری لے بیٹھی خادموں کو، تو کلیسیا نو بے خبری لے بیٹھی. وہ غریبوں کی تصویریں کھینچ کے ٹھک ٹھک ٹھک، وی ہیو نو چرچ پلیز ہیلپ اس. کہتے یار تو واقعی بہت غریب لگ رہے ہیں، دیو پیسہ، پیسہ آئی جا رہا، پیسہ آئی جا رہا. ابتدائی خادمین جو تھے وہ لوگوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، لوگ لے کے آ رہے تھے، وہ غریبوں کی مدد کر رہے تھے. موسیٰ کے پاس جب لے کے لانے لگے خیمہ اجتماع کے لیے چیزیں، سونا اور پشم اور کھالیں، اس نے کہا بس بھائیو بہت ہو گیا، بور نہ لے کے آؤ، کیونکہ جتنی ہمیں ضرورت تھی اتنا ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم اس کو بناتے ہیں اور اسی سے بن جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو اور منگا لیں گے، لیکن بہت ہے، بس کرو. آج دا پادری کدی کہندا آندے ہو. اور کلیسیا بھی ماری ماری پھر رہی ہے، کیونکہ کلیسیا اپنے آپ سے سنسیئر نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو انفارمیشن کے پیچھے بھاگ رہی، فلانے پادری نے یہ بات بتائی اور کسی نے نہیں دسی، فلانے پادری نے یہ دسی، کسی نے نہیں دسی. وہ بھائی تو نے توبہ کی ہے، تو نے نجات پائی ہے، تو نے بپتسمہ لیا ہے، تو نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے. اگر تو نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تو پھر یہ میسج کرنے، سننے، سنانے کا کیا فائدہ؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے اور اس نے اپنے کہنے کے مطابق واپس بھی آ جانا ہے. کلیسیا کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ سوال ہے. عید قیامت المسیح پر میں کرائسٹ کی کمنگ کے لیے آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے اندر ان گناہوں سے آزاد ہو چکے ہیں جن کے اندر آپ 20 سال پہلے پھنسے ہوئے تھے؟ کیا آج بھی وہی پرانی زندگی ہے؟ کپڑے نئے ہیں، بال نئے ہیں، کئیوں نے بال بھی لگوا لیے ہیں، بال بھی نئے، کپڑے بھی نئے، جوتے بھی نئے، زندگی پرانی، اجلے کپڑے، کالے تن من، سب کچھ پرانا، سب کچھ کالا، سب کچھ گناہوں کے اندر دبا ہوا، اور اوپر سے تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہوں. یہ کرائسٹ نے کہا. اوپر سے بہت صاف ہیں، سنگ مرمر ہے، گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں، عطر سے دھویا جا رہا ہے، اور اندر بو. قبر کے اندر کیا ہے؟ قبر کے اندر بدبو ہے، سڑے ہوئے مردے کی بو ہے.
वो शख्स जो गुनाह से भरा हुआ है, ऊपर से अपने आप को जितना मर्जी टिप टॉप कर ले, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी रेजरेक्शन डे, यीशु के जी उठने की ईद मुबारक हो, नफरत, गुस्सा, हसद, वही बुराइयां, वही बिदतें साला साल से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अगर यीशु जी उठा है तो मेरी जिंदगी मुर्दा क्यों है? अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से यह सवाल कीजिए, मुझे किस जगह पर होना चाहिए था? मैं आज कहां पर हूं? मैं कहां पर खड़ी हूं? मैं कहां पर खड़ा हूं? यीशु ने मेरे लिए जान दी, यीशु ने मेरे लिए कफारा दिया, उसने अपना बेया खून मेरे लिए बहा दिया ताकि मैं उसके खून के बहाए जाने के सबब से पाक हो जाऊं, खुदा की नजर में बेयाब ठहरूं और मेरे पास ये दिलेरी आ जाए कि मैं खुदा के तख्त के सामने बगैर रोक टोक के दाखिल हो सकूं। अगर यीशु जी उठा है तो मेरी जिंदगी के अंदर भी मुर्दगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका नाम लेवा हूं, मैं उस पर ईमान रखता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर भी खुशी और शादमानी होनी चाहिए, मेरी जिंदगी के अंदर भी वो सच्चाई होनी चाहिए, मेरी जिंदगी के अंदर भी मसीह का किरदार होना चाहिए। ऐ आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदद सराई करते, दुआ करते हैं कि खुदावंद इस ईद क़यामत अल मसीह पर जितने लोग इसको मना रहे हैं या इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनको खुदावंद तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी पर गौर कर सकें कि वो किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर जिंदगी के अंदर गुनाह है तो खुदावंद तौबा करने का फजल इनायत कर। आज अगर यहां पर कोई ऐसा बहन या भाई है जिसकी जिंदगी तुझसे दूर है, तो खुदावंद तुझसे रहम की दरखास्त करते हैं, अपने फजल को, अपने रहम को कसरत से इस जगह पर उंडेल खुदा, और एक एक जिंदगी को छूना शुरू कर, एक एक जिंदगी को टच कर खुदा, रिवाइव कर, ब्लेस कर, हर किस्म की नाउमीदी को हमारी जिंदगी से दूर कर, हर किस्म के गुनाह को हमारी जिंदगी से दूर कर, और हमें इस काबिल बना कि तेरे लहू से धुल कर तेरी बादशाही की वुसअत के लिए काम करें, और खुदा अपनी जिंदगी से तेरे जलाल को जाहिर करें। तेरी गहरी बरकत इन तमाम अजीजों पर चाहते हैं जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, खा वो व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं, खा वो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो फेसबुक पर सुन रहे हैं, किसी भी मीडियम से उन तक ये कलाम पहुंचा है, खुदावंद उन पर तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। ज़हनों को खोल, अक्लों को रोशन कर, दिलों को रोशन कर, ताकि खुदावंद शैतान के मंसूबे नहीं बल्कि तेरे मंसूबे हमारी जिंदगी के अंदर पूरे हों। तेरी सताइश करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल जी। आपको बहुत बहुत यीशु के जी की मुबारक हो।